Hi students, welcome back, and here I am with again the next chapter, next four important topics in economic survey. We'll be dealing about those basic four economic survey topic in part 3 of this particular session. But before that, we'll just have a brief outlook of what we have covered up till now and what are the portion which are left. So at first we have covered the basic of the Bihar economy, which was the first chapter of the economic survey, which talked about an overview. Secondly, we have covered in the next video we have covered the state finances, agriculture and light sector, enterprise sector, as well as labor, employment and migration. So that was a very important chapter if we need to cover some of the aspects of economy as well as GS1 and GS2 paper. Next we have covered, which we are going to cover today, is infrastructure and communication. So this particular chapter in infrastructure and communication, we are specifically going to see into about the road safety. What have Bihar government done about the road safety, the road network, the building construction, telecom network, as well as the postal and information technology development in Bihar. We are also going to see the impact of COVID-19 and initiatives in infrastructure, keeping in mind the COVID-19. So what were the impact, किस तरह के impact हुए थे COVID-19 के, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उस COVID-19 को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा गया था, जिस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है मिनिमल हिंड्रेंस के साथ कंप्लीट किए जा सकते थे, वो भी हम देखेंगे. एनर्जी सेक्टर हम लोग देखेंगे. एनर्जी सेक्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ पावर सेक्टर, new schemes and some new schemes and projects. So we'll be seeing into those perspective also. We are also going to cover rural development और जीविका, जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जीविका जो स्कीम है उसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे. और इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट देखेंगे, जिसमें हम लोग फिर अगेन कंक्लूड करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन अर्बन इकोनॉमी. सो ओवरऑल ये चार इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस है आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं. जो नेक्स्ट सीरीज और जो नेक्स्ट फाइनल सीरीज होने वाला है, लास्ट सीरीज होने वाला है इस इकोनॉमिक सर्वे का, इसमें हम लोग बिहार एंड एलाइड सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज देखने वाले हैं. सो अगेन वो लास्ट चैप्टर भी जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन. So we'll start with the first slide. So let's see what this first slide holds for us. So basically it is basically chapter 6, which talks about infrastructure and communication. So infrastructure और communication में बिहार का क्या अप्रोच रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में उसको कैसा देखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगेन एज आई हैव सेड इन माय ऑल माय लेक्चर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे, आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट द सेक्शंस व्हिच आर स्पेशली मेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू. सो what you need to focus is how to cover these particular things, how to cover the document important documents such as economic survey, and mark the areas which are specifically important for prelims, mains and interview. There are few areas which are important for all the three sections. कुछ ऐसे एरियाज है जो तीनों सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे एरियाज है जो मेंस में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो इंटरव्यू में whenever you present something, whenever you say something, आप अपने डेटा को अभी आप पर्टिकुलर जो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा से. सो वी विल सी द फर्स्ट पॉइंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर. द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू जीएसडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.2% in 1980-81 to 6.2% in 1990-91. सो सबसे पहला तो एक ये ओल्ड डेटा दिया गया है, ये पुराना डेटा है और इसलिए दिया गया. जब भी इस तरह के डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंपेयर करने के लिए डेटा दिया गया है. तो जो 5.2% था वो 1980-81 में, वो 6.2% हो गया 1990-91 में. मतलब हम देख रहे थे कि इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एंड डिक्लाइन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ 3.4% इन 1995-96. लेकिन हम फिर ट्रेंड क्या देखते हैं कि 1995 और 96 में 3.4% का डिक्लाइन हो जाता, 6.2% से 3.4% हो जाता. आफ्टर मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय स्टेट गवर्नमेंट सिंस 2005, there is a remarkable improvement, and this particular line needs to be noted that there is a remarkable improvement during the period of 2005-10 when it jumped to 11.9%
in 2009-10. It still contributes 10% of GSDP. So what you will see that impact of COVID-19 is definitely seen on this sector. In the period when we talked about 2005 and 2010, the growth rate was 11.9%. ये important data आपको याद रखना है, आपके prelims examination में ये particular data काफी important हो जाता है. So this pink one is very important for the prelims examination. Again, if you are covering mains examination, mains में infrastructure related कोई questions आता है, तो ये पूरा stanza, ये पूरा paragraph जो है, that is going to be very very important for the mains examination. We'll see the second point. The second point talks about Bihar has altogether 58 national highway, very important data, comprising a length of 5,475 किलोमीटर. एग्जाम्स में इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरह के फैक्चुअल देखे गए हैं, इसलिए 5,475 किलोमीटर एग्जैक्ट आपको याद रखना है एज ऑन सितंबर 2020, विच इज अराउंड 1940 किलोमीटर मोर देन द लेंथ इन 2005. सो फ्रॉम 2005 अप टिल हियर वी हैव एडेड 1940 kilometer. So during the last 15 years 30 more national highway have been added to state. So last 15 साल में 30 more national highway को add किया गया है. Around 1/4 of the single intermediary national highway have been upgraded into the double multiple lane. The state highway, that is SH, have also widened considerably, and nearly 75% of the single and intermediate lane state highway upgraded into double lane. So state highways के बारे में भी डेटा दिया गया है, एक रफ आइडिया आपको दिया गया है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में क्या हो रहा है. लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स फॉर दी प्रीलिम्स, आपको ये ध्यान में रखना है एक कि ओवरऑल जो है 58 नेशनल हाईवे है हमारे पास, और जो ग्रोथ हुआ है वो 5,475 किलोमीटर हुआ है, विच इज and this was taken on September 2020, and which is around 1940 kilometer addition if we talk from the baseline of 2005 year. So this is important point on the second point related to infrastructure and communication. We'll talk about the third point. तीसरा point भी important है. Only 4 bridges were construction on river Ganga till 2005. मतलब आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार कंपैरिजन किया जा रहा है, और ये कंपैरिजन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला. मेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के कंपैरिजन अगर डालेंगे तो आपको एक ओवरऑल, जिसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, पर्सपेक्टिव आउटलुक मिलेगा एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के. सो सिर्फ 4 ब्रिजेस बनाए गए थे 2005 में. देयर आफ्टर एडिशन ऑफ 12 ब्रिजेस हैव बीन आइदर बिल्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन. सो 12 ब्रिजेस का आइदर वो बन रहे हैं या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने वाले हैं. ये प्रीलिम्स के लिए भी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये डेटा इंपॉर्टेंट है. और ऑब्वियसली अगर क्वेश्चंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर आ जाए इंटरव्यू में, तो ये बात आप कह करके ऑब्वियसली आप बता सकते हैं किस तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को. बिहार गवर्नमेंट have accepted कि ये एक नीड है, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हम आगे के जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. आगे देखते हैं. फॉर द ब्रिज नेटवर्क हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड ऑन रिवर कोसी विद अ ब्रिज every 20 to 25 kilometer. River Kosi, again a very important river, many of which have constructed and rest under the construction. The other major river are Gandak, Son, Bagmati, Buri Gandak etc. have also been covered through expansion of bridges network. So चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में इन सारे रिवर्स को इंपॉर्टेंट माना गया है, एंड इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का. सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कवर दीज पर्सपेक्टिव ऑफ गंडक, सोन, बागमती एंड बूढ़ी गंडक एक्सेट्रा. इन सारे रिवर्स को भी आप कवर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, और इनके बारे में भी देखेंगे कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं. So this is about the point number 3. Then we'll talk about point number 4, and in point number 4 it talks about state public sector enterprise. So हम देखेंगे कि जो state public sector enterprise है, इन्होंने किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करा है. So the state public sector enterprise under infrastructure sector working proficiently and making profits. The Bihar State Road Development Corporation, Bihar Pul Nirman Nigam Limited and Bihar Building Construction
corporation all have undertaken many mega projects and completed them in stipulated time. So not only they have undertaken, and that is what which shows the attitude of the government towards the infrastructure development. सिर्फ अंडरटेक नहीं करना, लेकिन एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था, एक टाइम फ्रेम में जो है, चूंकि जेस्टेशन पीरियड इन सारे प्रोजेक्ट का काफी लंबा होता है और डिलेज के कारण जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में इसको कवर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड ऑल्सो अर्न सम नेशनल अवार्ड इन द एरिया. बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज ऑल्सो एक्सपैंडेड इट्स सर्विस बाय मोर देन 3 folds and its revenue collection went up by 8 times. Again, this is important data. This particular data is for prelims as well as mains. So आप इस particular data को ध्यान में रखने वाले हैं. Question number 5 देख रहे हैं, point number 5 देख रहे हैं. Since 2014, railway have constructed 300 kilometers of new line and have done 191 kilometers of multi-tracking. Again, ये numbers बहुत ज्यादा important नहीं है. जहां पे भी आपको ऐसे clutters of numbers दिखे, आपको बहुत ज्यादा focus नहीं करना है, लेकिन हाँ, उसके behind जो message है उसको आपको जरूर देखना है. So 304 kilometer of gauge conversion, 1687 kilometer of railway electrification. So again, these are data which again you just need to go through, just skim through these data just to understand what is going on in the railway sector, particularly when we talk about Bihar. During the same period, 58 pair of new train have been introduced. ये important data हो सकता है कि कितने नए ट्रेन इंट्रोड्यूस किए गए. तो 58 pairs of new train have been introduced apart from provisions of additional stoppage for more than 100 pairs of train. Now again, this particular data is important. Further, the aircraft movement increased by 9 folds. Very important data. एयरक्राफ्ट का मैंने जब बात कर रहा था इंटरप्राइज सेक्टर में, उस समय भी मैंने एयरक्राफ्ट सेक्टर के बारे में आपसे बात करी थी. सो इंपॉर्टेंट डेटा आप ध्यान में रखेंगे. एंड पैसेंजर मूवमेंट बाय मोर देन 25 फोल्ड ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर्स. सो अगेन, अगर डेटा 15 ईयर्स के रेंज में दिया गया है तो चांसेस है कि एग्जाम में भी डेटा 15 ईयर्स के रेंज में ही आएंगे. इसलिए एज इट इज जो important points, you are going to cover that. We'll see the next point. So in the next point, the postal telecommunication. Why? Because again infrastructure और communication दोनों साथ में आ रहा है. So next point जो है communication part को cater करता है. Postal and telecommunication and IT sector are increasing their reach and expanding its service in rural areas. The rural tele density in Bihar is increasing. Very important point. While urban tele density is in decline. So rural tele density increase कर रहा है, urban tele density decline कर रहा है. थोड़ा सोचना होगा the reason क्या है इसके पीछे. However, urban tele density exceed per connection per head, so the growth of internet subscriber is faster in rural areas of Bihar compared to urban areas. Now this particular fact is very interesting fact. और अक्सर अगर एग्जाम में ये फैक्ट डाल दिया जाएगा तो आप इसको हमेशा गलत करके आओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है आसान से, बिकॉज होता क्या है कि अर्बन एरियाज में जो बैंडविड्थ एलोकेशन होता है, बेसिकली जो डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मोबाइल के थ्रू 4G यूज करें वो ज्यादा इंप्रूव्ड है. तो हम लोग फोन भी यूज करते हैं, इंटरनेट भी यूज करते हैं, लेकिन जब रूरल एरियाज की बात करते हैं तो रूरल एरियाज में जो डिजिटल इंडिया की बात आई है, ये प्रोग्रेस काफी हद तक हुआ है और एक तरह से एक जागरूकता जागी है कि हम किस तरह से रूरल एरियाज में इंटरनेट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके. इसीलिए ये पर्टिकुलर डेटा आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई विल से इट अगेन, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इज फास्टर इन रूरल एरियाज. रूरल गांव वाले एरियाज में अधिक है कंपेयर टू अर्बन एरियाज. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड. विल सी द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7. द स्टेट हैव बीन फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस ड्यूरिंग कोविड-19. Students, as I've said, COVID-19 have been the theme. इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, it runs around 2 theme, COVID-19 and sustainability. Sustainability जब हम बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने बिहार ओवरव्यू करा था, उसमें हमने बताया था कि सस्टेनेबिलिटी में भी हम देखते हैं कि बेसिकली COVID-19 और एपिडेमिक सिचुएशंस में किस तरह से सस्टेनेबिलिटी की जाती है. सो आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट में, हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर में COVID-19 का इंपैक्ट जो है आपको जरूर दिखाया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में. The state is facing multiple challenges during COVID-19 pandemic for almost a year in different segment of economy, including infrastructure. Under Mukhyamantri Kaushal Shramik Udyami Cluster Yojana, the state government has supported 5 districts. And what are these 5 districts? Very important. इसको आप याद रखेंगे for the prelims point of view. Prelims के लिए ये important है. This is a potential section where question could be asked.
5 डिस्ट्रिक्ट हैं, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट के नाम भी याद रखने हैं आपको, योजना का नाम भी याद रखना है और योजना से जो पांचों डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड है वो भी आपको याद रखना है। थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हनी, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा। Point number 8, and which is the last point of this particular infrastructure and communication, during the period of April and September 2020 around 1000 kilometers of road network have been अपग्रेडेड। हमने क्या बताया था आपको कि कोरोना का इंपैक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में थोड़ा सा पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव इन अ सेंस कि जो हर्डल्स होते, जो ह्यूमन हर्डल्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कोरोना के कारण चूंकि लॉकडाउन था, सभी लोग घर में बैठे हुए थे, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को फास्टर पेस से किया गया। अगेन दैट्स अ कॉमन सेंस, एनीवन कैन डिड्यूस इट, बिकॉज लोग घर में थे तो रोड कंस्ट्रक्शन बड़े आराम से हो सकता था, ट्रैफिक नहीं था, और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक 1000 kilometers of road network have been added, upgraded, and thousands of workers returning from other state were provided with the employment. Dual benefit हुआ कि भाई रोड भी बन गया, जो बनना था, जो किसी कारण से बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द पीपल रनिंग ऑन द रोड उस समय हमने कवर नहीं कर पाया, बट इसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे थे, जिनको एम्प्लॉयमेंट की सख्त जरूरत थी कोरोना में, उस समय एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया। In addition, 30 bridges have been constructed to provide direct employment. The Transport Department has managed the critical situation during COVID-19 through transportation of more than 25 lakh labor returning from other states, their skill mapping and the zonal distribution. So ये भी किया गया था। ये important points है जो माइग्रेशन वाले सेक्टर में आप डालोगे, जहाँ पे जो वर्कर्स आ रहे थे केवल उनका डेटा कलेक्ट नहीं किया गया, उनसे ये भी पूछा गया कि भाई वो कौन से एरिया में काम करते हैं, उनका स्किल सेट क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी में काम कर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो बिजली से रिलेटेड वर्क्स हैं उसको करते हैं, वो कारपेंटर हैं, वो किस तरह का काम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मैनुअल लेबर है, किस तरह का स्किल सेट है, इसका एक पर्टिकुलर डिटेल डेटा गवर्नमेंट ने बनाया, स्किल मैपिंग की एंड जोनल डिस्ट्रीब्यूशन किया रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन्स के, ताकि जब अगर काम की जरूरत हो तो उनको आसानी से कांटेक्ट किया जा सके। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कन्फर्ड द अवार्ड ऑफ कमेंडेबल इनिशिएटिव टू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इनोवेशंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कन्फर करा, अवार्ड दिया, किसको अवार्ड दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को अवार्ड दिया है। किस लिए अवार्ड दिया है, फॉर द कमेंडेबल initiatives which they did on in the COVID-19. So COVID-19 में जो उन्होंने काम करा उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया गया। So student, this was about the topic of infrastructure and communication. The next topic in economic survey, जो दूसरा टॉपिक आज का है वो है एनर्जी सेक्टर, और हम देखते हैं कि चैप्टर 7 में इकोनॉमिक सर्वे के एनर्जी सेक्टर के बारे में बात की गई है। क्या है, द पर कैपिटा एनर्जी, ऐसे डेटा प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन द स्टेट हैड राइजन फ्रॉम 145 किलोवाट आवर इन 2012-2013 टू 332 किलोवाट आवर इन 2019-2020। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ये तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको इसको याद रखना है। इंप्लाइंग अ ग्रोथ ऑफ 129% इन लास्ट 7 ईयर, दिस आल्सो कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन पूछे तो ये अगर डायरेक्टली यहां से पूछे तो दे आर गोइंग टू पुट दी 7 ईयर्स। सो आपको ये देखना है कि भाई 5 साल पूछेंगे, अगर वो पूछे ये इकोनॉमिक सर्वे से पॉइंट लिया तो वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट दी 7 ईयर्स व्हिच इज पुट फॉरवर्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, यू हैव टू mug out that this is 129%. So there was a significant improvement in projected peak demand in Bihar. So जो peak demand था, जो डिमांड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो शो करता है कि ग्रोथ हो रहा है। स्पेशली जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इंटरप्राइज सेक्टर है, इसमें ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और ये बिहार में पीक किया है फ्रॉम 2650 मेगावाट इन 2012-13 टू 5900 megawatt in 2019-20. difference you can see the great difference, 5900 मेगावाट इंक्रीज किया है, implying a growth of 123% in last 7 years. अगेन फिर से इंपॉर्टेंट डेटा है। सो अगेन स्टूडेंट्स, इस तरह के डेटा को आपको याद रखना है। 123% in last 7 years. The peak demand met again had a growth around 226% to reach
5891 मेगावाट ड्यूरिंग 1919-20, जो कि पहले 1802 मेगावाट था। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, 332 किलोवाट आवर जो है ये हमारा जो है बेसिकली पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। आगे के पॉइंट्स देखते हैं एनर्जी सेक्टर में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर कैपेसिटी इन द स्टेट वाज 4767 मेगावाट इन 2018-19 व्हिच इंक्रीज टू 6073 मेगावाट इन 2019-20। एक आपको ध्यान में रखना है, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, यू विल जस्ट मार्क अ लाइन लाइक दिस। आपको ये समझ में आना है कि पावर कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, इंप्लाइंग अ ग्रोथ ऑफ 27%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 27.4% जो है इंक्रीज हुआ है पावर कैपेसिटी। यू नीड टू रिमेंबर this particular data to meet the increased demand of power. The state government have already planned for additional capacity of 4516 megawatt from different sources in a phased manner. So again this is a data which you can keep in mind. You can see कि state government जो है power sector को और भी बढ़ाने के लिए और power sector से जो allied sector है जिनका benefit power sectors के द्वारा मिलता है, वैसे sectors को boost करने के लिए state government जो है serious initiatives ले रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बिहार इज बीइंग सर्व्ड बाय 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात मैंने आपको अभी बताई थी, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट कंपनी है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आप लोग जब इलेक्ट्रिसिटी बिल डालते होंगे तो ऑब्वियसली आइदर आप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साइट पे जाते हैं या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साइट पे जाते हैं। तो ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का सेग्रीगेशन है। एज ऑन मार्च 2020 these companies together are serving more than 159.3 lakh electricity consumer. Not very important data, but just you can just skim through this particular data. Next point देखेंगे the generation and purchase of power. The net of central transmission loss in Bihar increased from 29,027 MU in 2016-17 to 30,630 MU in 2019-20, implying a growth of over 33%. Again, the data here is not very much important. There is a very less probability that they are going to focus on these particular data, but the percentage which are mentioned over here is important. So what you need to follow is the percentage part, that is the 33% in the 3 years. Again, पहले 7 years वाले जोन में क्वेश्चन आ रहा था, अब 3 years में आ रहा है, आपको इसको भी फोकस करना है। With the 33% increase in sales and the last 3 years, the revenue collection has also increased. So again, there are some positive news for this particular sector. We'll see in the next slide. In the next slide, again the difference is because North Bihar and South Bihar Public Distribution Company Limited of Bihar together have reduced AT&C loss. So basically it is a transmission loss. So they have reduced the transmission loss from 43.5% in 15-16 to 35.9%. आप लॉस देखो 43 से इट इज 35.9% इन 2019-20। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसीलिए आपको जो है ये पर्टिकुलर डेटा को याद रखना है कि जो AT&C लॉस है बेसिकली वो 43.5% से 35.9% हो गया है। बेसिकली ऐसे ये कैसे लॉस होते हैं, जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह जनरेट होती है और फिर एक ऐसी कंपनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिशन लॉस बेसिकली ये शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है और उसको अब हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि लॉस जो है कम हो रहा है। and again the gap from 89 पैसे per unit was reduced to 50 पैसे। तो अगेन जो ट्रांसमिशन लॉस है इससे जो हमारे पास इकोनॉमी लॉस हो रहा था वो भी हम इसको कर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पावर एज ऑन मार्च 2019 was 4767 megawatt with a growth rate of around 27.4%। टोटल जनरेशन कैपेसिटी का ग्रोथ कितना हुआ है 27.4%। आपको बस ऐसे मार्क कर लेना है, पूरा सेंटेंस आपको गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग मार्च 2019 टू मार्च 2020 द ग्रोथ रेट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर इज 21%। अगेन आपको ये भी देखना, कई बार सेग्रीगेट करके पूछ लेते हैं
थर्मल पावर कितना है और अदर सोर्सेस पावर के क्या हैं। तो आपको देखना है कि ग्रोथ रेट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर इज 21.7%, 50.6% इन हाइड्रो पावर। सो हम क्या देख रहे हैं कि हम थर्मल से अब हाइड्रो की तरफ आ रहे हैं, एंड 58% इन रिन्यूएबल एनर्जी। सो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्लाइमेट चेंज का अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो बेसिकली डेवलपमेंट है ये शो कर रहा है कि बिहार गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितनी सीरियस है। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एज पर द रीसेंट गाइडलाइन इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, DISCOMs are now designated as nodal agency for implementation of solar roof-topping project. So अब जो different DISCOMs हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये भी सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं स्टेट में। MNRE has allocated 5 मेगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एक बार आप देख लेंगे, लेकिन आपके लिए जानने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिस्कॉम्स भी अब अलाउड होते हैं उनको, और ये भी शो करता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बिहार जो गवर्नमेंट है वो काफी सीरियस है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि अब चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, जहां पे हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट बिहार का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम है इकोनॉमिक सर्वे में, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, जीविका जो प्रोग्राम है, मिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार में, इसलिए आप लोग सभी लोग जाकर के जीविका प्रोग्राम के बारे में डिटेल जरूर पता करके के रखोगे। एग्जाम्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कहीं ना कहीं आप इसका उपयोग कर सकते हो। बिहार लाइवलीहुड मिशन, दैट इज जीविका, हैज बीन वर्किंग स्टेडली इन रूरल डेवलपमेंट इन स्टेट। द नंबर ऑफ स्टेट हेल्प ग्रुप्स, HSG सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं इसको, फॉर्म प्रेजेंटली स्टैंड्स 10.17 lakh compared to 4.70 lakh in 2015-16। अभी कितना है, अभी 10.17 लाख है, कितना था पहले 4.70 लाख था, और अगेन दैट इज अ वेरी ग्रेट इंक्रीज। तो जहां पे भी आपको स्टार्क इंक्रीज दिखेगा, बिग डिफरेंस दिखेगा, यू आर गोइंग टू नोट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन प्रोवाइडेड विद क्रेडिट ऑफ रुपीज 13.14 thousand crores in 1918। बेसिकली ये शो कर रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार जो है बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसीलिए आप जरूर जब भी मेंशन करें रूरल डेवलपमेंट में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो जरूर बात करें, क्योंकि ऐसा है कि इंजन ऑफ ग्रोथ जो बिहार रूरल इकोनॉमी को दिया जा रहा है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट रोल पाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, the Manrega scheme have been implemented in Bihar, resulting in substantial increase in rural employment. So the positive effect of Manrega is also being seen here, and the number of job card issues. So there are some data which again as I've said is not very important. The number of job card कितने हुए हैं, लेकिन आपको ये जरूर रखना है कि there is a steady increase in Manrega employment. The employment generation were 668.2 lakh person days, and which was earlier, so in 2019-20 it is 418.9 lakh। so 169 से ये इंक्रीज करके 1418.9 lakh person per day हो गया है। The extent of fund utilization was 81.2%। again that is also a good news। so जो फंड यूटिलाइजेशन था वो 18.2% जो था वो 2006 में था, एंड मोर देन 100% अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में ऑप्शन डाल देंगे और जहां पे भी मोर देन 100% लगेगा आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग रूरल मिशंस और रूरल डेवलपमेंट को लेके स्पेशल सीरीज लेके आएंगे वहां हम बताएंगे कि बेसिकली जहां पे ये किस तरह से ये पॉसिबल है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच यू नीड टू फोकस। द लाइन सेज दैट दिस पर्टिकुलर The extent of fund utilization was 81.2%। कब था, 2016 में, और अभी more than 100%, कितना 102.2% हो गया है 2019-20 में। This is an important fact for prelims as well as mains। So we'll see the next point, the प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण is an important scheme to ensure housing facility for rural poor। in 1920 4.2 lakh houses were completed at a cost of, again these minute details are not very important but you need to go through प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आप इस पर्टिकुलर योजना को जरूर देखेंगे, प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर ट्रेंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS is functioning satisfactory in Bihar. It now covers 85.1% of the rural household and 74.5% of the urban household. Lifting of the food grain under PDS have also been more than 95%. So you would find that ऐसे जो sectors rural development में incremental जो सुधार पहले हो रहा था, अब ये सुधार अचानक से because एक लंबे समय से 2005 से different आपने ये भी देखा कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो चलाए गए। 2015 में 7 निश्चय पॉइंट 1 आया, 2020 में 7 निश्चय पॉइंट 2 आया। सो ये सारे प्रोग्राम्स अब जाकर के जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो ग्रोथ हो रहा है रूरल डेवलपमेंट में, कई बार आप देख सकते हैं दीज आर मेनी फोल्ड्स। So PDS have always been more than 95% in 2019-20 as it was highest at 99.8%. Again जैसा कि मैंने कहा कि important data है, fact है। So आप देखेंगे कि 1920 में जो है ये बहुत ही अधिक था, it was highest। आपको इसको फोकस करना, ये पर्टिकुलर डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जब भी रूरल डेवलपमेंट की बात करें और पंचायती राज के बारे में बात नहीं करें तो डिस्कशन हमेशा अधूरा रहेगा, वो भी एग्रीकल्चरल स्टेट लाइक बिहार में। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सर्विस फॉर रूरल डेवलपमेंट कवरिंग एन एरिया ऑफ एजुकेशन में, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा में एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन तीनों एरियाज में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार में। टेकिंग ऑल दीज 3 लेवल्स टुगेदर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायती राज, अगेन देयर आर सम फैक्ट्स व्हिच यू कैन गो थ्रू, बट अगेन आगे वाला जो 2 लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। वो ऑब्वियसली एक मैसेज देता है कि किस तरह एक्टिवली मल्टीपल लेवल्स पे जो है बिहार गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। And next point again talks about a very important program. You need to cover this program in completion in toto. So लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, again इसका जो symbol है वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, is an important scheme for improving sanitation in rural areas. So स्वच्छ भारत मिशन तो है ही, अभी आपको 7 निश्चय से रिलेटेड एक वीडियोस भी आएगा जिसमें आप देखेंगे कि 7 निश्चय में हम लोगों ने ग्रामीण स्वच्छता की बात करी है। So उसमें भी अगर आपको कभी क्वेश्चंस आए मेंशन करना हो तो आप लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बिहार का। एंड टिल डेट इट हैड कंस्ट्रक्टेड 1.09 करोड़ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन्स। At present 96% of the villages have become open defecation free. Important data है कितना, 96% जो है villages है वो ODF है, open defecation free है। ये important data आपको याद रखना है। 7th point here, Rural program is an initiative by central government to provide urban facility. अर्बन, आर और अर्बन आपको दिख रहा है, रूरल और अर्बन। सो रूअर्बन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में हम अर्बन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें, अच्छे एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें। सो रूअर्बन प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटी इन क्लस्टर्स ऑफ विलेज विथ 25 to 50,000 population in Bihar. In Bihar 11 clusters were identified. Again a very important data, कितने clusters identify हुए थे, तो 11 clusters थे। For this program till date a total of rupees 1179.7 crore was allocated for the mission, of which rupees 157.4 crore have been spent. Again this particular data is not very much important, you can just skim through this data, लेकिन इससे ऊपर वाला जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन, यू नीड टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, हमने रूरल डेवलपमेंट की बात करी, हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ, हमने देखा एनर्जी सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब उसी से मिलता जुलता जो है हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, और हम देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट में किस तरह से बिहार को जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे अर्बन डेवलपमेंट को किस तरह से देखता है, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हुए हैं अर्बन डेवलपमेंट में। इन बिहार द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैव बीन लो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन। जो अर्बनाइजेशन है वो कम है बिहार में, रेट उसका 11.3% कंपेयर टू ऑल इंडिया लेवल। सो ऑल इंडिया लेवल से नीचे है, बट रिसेंटली 109 न्यू नोटिफाइड एरिया काउंसिल हैव बीन सेट अप। लेकिन धीरे धीरे दिख रहा है कि ये जो पेस है अर्बनाइजेशन का बिहार में धीरे धीरे भी सही लेकिन इंक्रीज हो रहा है।
along with 8 new municipal councils. In addition, 32 old notified area have been upgraded to municipal councils, while 5 old municipal councils have been upgraded to municipal corporations. The area of jurisdiction of 12 municipalities have also been expanded. As a result, the rate of urbanization have increased from 11.3 to 15.2. So ये पूरा डेटा अगर आप स्किप भी कर दे रहे हैं, आपको लास्ट वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों सेक्शंस में आपको ये डेटा आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। 11.3 पहले था, लेकिन इन सारे इंप्रूवमेंट के कारण अब जो है अर्बनाइजेशन 15.2% के रेट से ग्रोथ कर रहा है। Next point, the budget allocation of state government under urban development was rupees 1784 crore. Again, these data are not very important, but whenever we talk in terms of percentage, that became important. So हम देखेंगे क्या, registering a growth of 129% in 5 years. सो डेटा आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ जो है वो स्किप नहीं करोगे। आपको ये ध्यान में रखना है, अर्बन डेवलपमेंट का परसेंटेज ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में कितना है, इट इज 129%। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। फर्दर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 1364 करोड़ to rupees 3064 crore in 2018-19, implying a growth of 125%. So again, जहां परसेंटेज की बात करेंगे, क्या है बेसिकली जो ग्रोथ, एक्सपेंडिचर का ग्रोथ है वो भी बढ़ा है, और जब भी एक्सपेंडिचर किसी सेक्टर में होता है तो इसका मतलब कि सरकार सीरियसली उस पर्टिकुलर सेक्टर को देख रही है। 125% का ग्रोथ जो है आपको मिलता है अर्बन डेवलपमेंट के सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस हर घर नल का जल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, स्कीम टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन। फ्रेंड्स, जितने भी योजना, प्रोग्राम्स, मिशंस आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किए गए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल अगेन रिमाइंड यू टू गो थ्रू दोस प्रोग्राम्स इन डिटेल। सो हर घर नल का जल स्कीम टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज विथ वाटर पाइपलाइन कनेक्शंस by 2020-21. Under this scheme, it is targeted to remove all hand pumps on which the urban people depends for its for their needs. It is roughly estimated that around 15.854 lakh household would be benefited under this program. So हर घर नल का जल से भी related important data है which you should remember. Next point, the number of self help group, जिसकी अभी बात हमने रूरल सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट के लिए की थी, वहाँ अर्बन डेवलपमेंट में भी हम देख रहे हैं। The number of self help group formed under National Urban Livelihood Mission, अभी हमने जीविका की बात करी थी, यहाँ पे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। सो ये कंपैरेटिव स्टडी करते रहना है आपको। हैज इंक्रीज फ्रॉम 2185 इन 2017-18 टू 4542 इन 2019-20। दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट डेटा बिकॉज अगेन द इंक्रीज इज वेरी स्टार्क, लगभग दुगना, लगभग डबल हो गया है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एसएसजी अंडर NULM also increased. So again, this data is not very much important. You can just skim through this particular data. Next, question number 5. The construction of toilets in 2018 was 2.71 lakh, which increased to 4.09 lakh in 2019. So construction of toilets, जो sanitation है, स्वच्छता, अगेन हमने जब 7 निश्चय की बात करी थी तो एक जो निश्चय था वो क्लीनिनेस का था, जिसमें हम स्वच्छ गांव और स्वच्छ शहर की बात कर रहे हैं। वहां पे आप इंटर रिलेटिव स्टडीज कर सकते हो कि यहाँ पे भी वो चीज डाला हुआ है। एंड 4.04 लाख बाय सितंबर 2020 टिल डेट, 142 अर्बन सेंटर्स एंड अ टोटल ऑफ 3,367 wards out of 3,367 wards have been declared as ODF. So again, जो ODF डेटा आपके जो है रूरल एरियाज में था, वही ODF डेटा आपके अर्बन एरियाज में भी पर्टेन कर रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने मार्क करा है, वो है पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से, जो कि काफी सही पेस से इंक्रीज हो रहा है विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,365.77 करोड़। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, वाज सैंक्शनड इन February 2019. So this particular amount was sanctioned in February 2019 for implementation of project of Patna Metro Rail Corporation has been
been constituted and registered again in February 2019. The total length of the project is 31.39. Very important, आपको ये याद रखना है, total length है 31.39 kilometers. The implementation of Patna Metro Rail project will entail a cost of rupees 13,412 crore in special purpose vehicle model. So SPVs मॉडल में स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके जो है इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है पटना रेल मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसको इंप्लीमेंट कर दिया जा रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पूरे पॉइंट को आप जरूर देखेंगे. एंड फ्रेंड्स, विद दिस वी आर ओवर विद टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कवर करा था टॉपिक रिलेटेड टू 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स. पहला सेक्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, देन वी टॉक्ड अबाउट एनर्जी सेक्टर, देन रूरल डेवलपमेंट, देन अर्बन डेवलपमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डेटा को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे यूटिलाइज करें आप जरूर देखें. इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, इन 4 वीडियो में हम लोग पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिए हैं. लास्ट वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक, बैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.